Hello, welcome to my YouTube channel Vivan Live, and in today's video I'm going to talk about how to make money in crypto bear market. I know a lot of people who are really panicky about bear market because apparently they think that bear market में सब लोग wrecked हो जाते हैं. But no, there are ways where you can make consistent amount of money in the bear market as well. So let's deep dive into the video. In this video, I'm gonna show how I am making $100 a day. I will also show you my P and L statements, which will actually give you more insights on that. The whole idea about this video is just to educate you. Not a financial advice, guys. As I told you before, this is for education and entertainment purposes. So in this video, we are going to cover how I trade in a bear market, how to double down on your investments, how to manage your risk, and few DeFi options where you could make consistent passive income, how I trade in a bear market. You can see that the bear is really angry. Why is it angry? Because apparently whenever the market falls, it falls violently. Zup 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 नीचे आ जाता है. ठीक है, 2-3 दिन में ही नीचे आ जाता है. लेकिन जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे ऊपर जाता है. This is one thing that you'll have to keep in mind, that whenever you are taking a long position, मतलब आप बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है. बट अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो अपेरेंटली शॉर्टर पोजीशन जो होती है वो जल्दी ही अपने टारगेट प्राइस पे आ जाती है. We're gonna talk about how do I short, how do I follow the trend. So basically, I and everyone out there, we're all hodlers. We want to make sure that Bitcoin goes to 100k. But you know what? Following the trend is really important. So there's a saying in the market: make the trend your friend. So जिस direction में trend जा रहा है, वही direction में आप जाओ. We're gonna talk about backtesting strategy. You can see on TradingView, मैंने Bitcoin का chart खोला हुआ है. 4 hours time frame है. That means every candle, every red, every green candle that you see is of 4 hours. 4 घंटे लगते हैं उसको बनने में. You can change it according to your needs. We can see few lines. One is the green line, one is yellow, one is red. I will be only talking about the red line. Red line is 200 EMA. EMA मतलब है exponential moving average. So basically जितने भी पिछले 200 candles का जो average है, उससे वो line बन रहा है और वो exponential है, so it keeps on changing. सो प्रीटी सिंपल, प्रीटी बेसिक, उससे एक आपको एवरेज का पता चल जाता है. सो जब भी एक बड़े टाइम फ्रेम में जो रेड लाइन है, जो कि आपका 200 EMA है, प्राइस अगर उसके नीचे चली जाती है, दैट मीन्स कि हम आगे थोड़े दिन या थोड़े हफ्ते या थोड़े महीने या मे भी कुछ साल हम बेयर मार्केट में रहने वाले हैं. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बोलता है. Whenever the price falls violently from the red line, crosses the red line below, it's time to short the market. So if you look at the screen here, you can see ये bear trend start हुआ 16th November से. So 16th November Bitcoin was 61k. वहाँ से ये गिरते अभी it's around 38k. So what is the strategy? So this is not the only strategy that I use. I use a lot of strategies. Those strategies are made by me itself. ऐसा नहीं है कि मैंने किसी यूट्यूबर का देख के मैंने बना लिया. Every strategy doesn't work for everyone. You need to make your own strategy to win. So वो strategy क्या हो सकती है, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा. यू विल हैव टू बैक टेस्ट इट, सी वेदर इट्स वर्किंग फॉर योर मेंटालिटी और नॉट. क्योंकि हर इंसान की मेंटल कैपेसिटी अलग होती है, तो हर बंदे का जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो भी अलग होता है. नॉट एवरी स्ट्रेटजी वर्क्स फॉर एवरीवन. यहाँ पे आपको डेमो दे रहा हूँ. सो व्हेनेवर द प्राइस गोज बिलो रेड लाइन, आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करो. रेड लाइन से थोड़ा ऊपर आप एसएल रख लो. एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस. जुप 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 नीचे आया, यू बुक द प्रॉफिट्स. वापस जब रेड लाइन के पास जा रहा है, इफ इट इज टचिंग द रेड लाइन, यू कैन ओपन अ शॉर्ट विद अ वेरी स्मॉल रिस्क. थोड़ा इसके ऊपर अगर आप एक स्टॉप लॉस लगाते हो, देन इवन दैट वुड बी अ गुड पोजीशन. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग अ शॉर्ट हियर, योर स्टॉप लॉस कैन बी दिस पोजीशन बिकॉज यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है. सो ये अगर आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स ये आपको ट्रेड दे चुका है जो कि प्रॉफिटेबल है. जस्ट रिसेंटली ये 4th नवंबर को ये ब्रेक कर लिया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता. उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद इस तरफ जाते हैं और तो यहाँ भी ऑलमोस्ट टच होके नीचे आ गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट टच होके नीचे आ गया. दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन ट्रेड. यू सी इट टच्ड हियर वंस, इट टच्ड हियर
again. So out of the 12 trades, only once you would have been in loss. जिसमें भी loss हो रहा है, आपका जो risk amount है वो काफी कम है. So that is how you backtest your strategy. आपको at least 50, 60, 70, 80, 90, 100 trades का backtest करके डाटा बनाना है. डाटा बना के आप एक एक्सेल शीट पे डालिए एंड देखिए कि उसमें से विन रेट कितना है. इफ द विन रेट इज रियली गुड अबव 60 देन इट इज गुड इनफ. सो दैट्स हाउ यू बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी. नेवर गो ऑल इन. सबको मून पे जाना है, एक ही रात में करोड़पति बनना है, बट दैट्स नॉट द वे हाउ यू डू इट. मेकिंग मनी शुड बी अ बोरिंग प्रोसेस. Until unless it's not boring, you won't be making a lot of money. You'll just be gambling with your money. So कभी भी all in मत करो. Make sure that you are managing your risk properly. Whenever you are taking a position, don't go all in. 4 हिस्सों में अपने पैसे को बांटो and 4 हिस्सों में आप पोजीशन लो. For example, if you're shorting Bitcoin, I'd say suppose एक Bitcoin 100 रुपीज का अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट मतलब आप बोल रहे कि प्राइस नीचे आएगा, राइट? तो आप थोड़ा 100 पे करो, थोड़ा 110 पे करो, थोड़ा 120 पे करो, थोड़ा 130 पे करो, एंड आपका जो एसएल है मे बी 2-3 पॉइंट ऊपर रखो उसके, एंड आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा नीचे रखो. सो दिस वे क्या होता है कि आपका अगर 1:3, 1:4, 1:5 का अगर रेशियो बैठ जाता है, इवन इफ यू आर विनिंग जस्ट लाइक 18% ऑफ द टाइम, यू स्टिल मेकिंग मनी. सो मेक श्योर दैट यू आर नेवर गोइंग ऑल इन. एक्सेप्टिंग एंड मूविंग ऑन. लड़की दिल तोड़ देती है तो हम अरिजीत सिंह के गाने सुन के मूव ऑन हो जाते हैं. वैसे ही अगर मार्केट में लॉस होता है, पानी पी के आप मूव ऑन हो जाइए. Never ever try to take revenge trades. It is only going to hurt you. Always trade with a plan. If the plan is not working, take a freaking break. या अपनी strategy को थोड़ा optimize करो and backtest करो. Maintaining a journal पे हम थोड़ी देर में आते हैं. हम आपको हमारा profit loss दिखा देते हैं. This is Binance Wallet show कर देते हैं. So this account, I was running these strategies from 1st of Jan, and the main criteria for me was to make $100 every day. I deposited $1,666 to this account, and you can see the total profit here is 5.5k. The total loss, which includes the trading fee and the transaction fee and the funding fee and all of that, is 603. So on an average हमने profit बनाया $4.95k. Winning days उसमें से 36 days है, losing days 21 days है. Win rate 63% है. मतलब अगर हम 100 trades ले रहे हैं तो हम 63 टाइम जीत रहे हैं, राइट? एवरेज प्रॉफिट, हर एक ट्रेड का एवरेज प्रॉफिट $154 है. एवरेज लॉस $28 है. अगर मतलब मैं अगर गलत हूं तो मेरे सिर्फ $28 जाएंगे, और अगर मैं सही हूं तो मेरे $154 आएंगे. प्रॉफिट टू लॉस रेशियो इज 5.38. दैट मीन्स एवरी टाइम आई एम मेकिंग 5 rupees, आई एम ओनली लूजिंग 1 rupee. सो नाउ लेट्स कम बैक टू मेंटेनिंग अ जर्नल. I strongly believe if you can't measure it, you can't improve it. If you want to go ahead in life, you need to start measuring. Measure the time you waste, measure the money you spend, measure the trades you take. I'll tell you about me, right? So हम सब right बहुत ज़्यादा बोलते हो. So this is a pattern, right? देखो वापस right बोला. क्यों? क्योंकि ये पैटर्न है. वैसे ही जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप कुछ चीजें करते हैं जो कि एक पैटर्न बन जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि आप उस पैटर्न को फॉलो अगर कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ये चीज तभी आपको पता चलेगा जब आप जर्नल लिखोगे. जर्नल में लिखोगे कि मैंने इस पॉइंट पे एंटर किया, इस पॉइंट पे निकाला, इतना लेवरेज यूज किया, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, किस स्ट्रैटेजी के बेस पे लिया, और कितने बजे लिया, कौन सी तारीख को लिया. इफ यू आर एबल टू राइट ऑल ऑफ दिस, इफ यू वांट आई विल मेक द टेम्पलेट एंड गिव इट टू यू गाइस. If you can make this happen, if you follow this for 1 month, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से दिन में ज्यादा पैसे बनाते हैं, कौन से दिन में ज्यादा पैसे लूज करते हैं. For me, Sundays are the worst. Sundays के दिन में सबसे ज्यादा पैसा लॉस होता है मेरा, and that's one of the reasons मैं Sundays को ट्रेड करना छोड़ दिया. ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूँ, एक गूगल शीट मेंटेन करता हूँ, जहाँ पे जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, फोन से हो, आईपैड से हो, लैपटॉप से हो, मैं उसमें एंटर करता हूँ. So start maintaining a journal, guys. Doubling down on your investments is basically जब मार्केट नीचे जा रही है तो आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, बट यू डोंट हैव दैट मच मनी दैट यू कुड इन्वेस्ट, राइट? सो व्हाट डू आई डू? जैसे मैंने $1,600 डाला था ट्रेडिंग अकाउंट में, आई हैव मेड इट एज $3,000. एक्चुअल में $3,000 से ज्यादा हुआ है, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा स्पॉट वॉलेट में गया.
बाकी का सारा पैसा स्पॉट में जाता है। जो जो चीजें मुझे पसंद है, बिटकॉइन, इथेरियम, पोल्काडॉट, मैटिक, जो भी मुझे पसंद है वो चीजें मैं खरीदता हूँ सस्ते में। इन द लॉन्ग रन दिस पोर्टफोलियो विल कीप ऑन ग्रोइंग बिकॉज ट्रेडिंग में मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसको इन्वेस्ट करके मैं उसको स्टेक और लेंड कर रहा हूँ जहां से मैं इंटरेस्ट भी कमा रहा हूँ। री इन्वेस्टिंग इन स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट से बेसिकली जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होता है, आप सीधा अगर बिटकॉइन खरीद रहे हो तो आप बिटकॉइन विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आप लेकिन बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहे हो फ्यूचर्स वॉलेट में तो आप बिटकॉइन को विड्रॉ नहीं कर सकते। स्पॉट वॉलेट मतलब जो आप पैसे दे रहे हो वो आपको मिल रहा है। Staking lending for building wealth. So building wealth is really important. I don't want to be 85 and still trading, right? I don't want to do that. I would want to have passive income sources and enjoy my life when I'm 85. So staking and lending आप कर सकते हैं. You should use or maybe try out Vault. Vault gives 6.7% interest on Bitcoin and Ethereum. Bitcoin, for example, अगर आप एक Bitcoin डालते हो Vault में, एक साल बाद that one Bitcoin wouldn't be one Bitcoin. That would be 1.067. और वो 067 की वैल्यू भी इवेंचुअली बढ़ती जाती है अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम Bitcoin के बुल साइकिल में है तो। So Vault यूज करना मत भूलना। Vault का लिंक नीचे डाला हुआ है। Vault is also giving you opportunity where you could do an SIP in one crypto or multiple set of cryptos and you can also buy the dip automatically. रात के 3-4 बजे अगर मार्केट गिर रही है, you need not do it yourself. Vault will do it on your behalf. Also you could check out Binance Earn. Binance Earn पे भी आप स्टिकिंग कर सकते हैं, लेंडिंग कर सकते हैं, जहां से आप इंटरेस्ट कमा के उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पॉट वॉलेट में। लाला रिस्क है तो इश्क है। वेल रिस्क के साथ इश्क डेफिनेटली है, लेकिन उस इश्क के साथ बर्बादी भी है। सो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। So I'll tell you what I do. ये जो आपको दिख रहा है बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल लॉस, ये क्या है? So basically जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं you will have to make sure कि आप इनके इन क्वाड्रेंट्स में से सिर्फ 3 क्वाड्रेंट में आपको रहना है। That is बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस अगर हो रहा है लेके निकल जाओ। अ गुड ट्रेडर इज वन हु नोज व्हेन टू एग्जिट, राइट? अ गुड ट्रेडर इज वन हु नोज हाउ टू लूज स्मॉल एंड विन बिग। सो अगर आप बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस बना रहे हो, स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस एक दूसरे के साथ कट हो जाएगा, बचेगा क्या? बिग प्रॉफिट। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, रिस्क मैनेजमेंट ढंग से नहीं करते हो, आपका बिग लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट ड्रेन हो जाएगा। फिर आपको वही 9 to 5 वाली नौकरी करके और पैसे डालने पड़ेंगे, या तो आपको अपने फ्रेंड से पैसे लेके डालने पड़ेंगे, जो मैं चाहता नहीं हूं कि आप करें। इसलिए मेक श्योर एवरी टाइम बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, इस पे ध्यान देना। नाउ आई विल टीच यू व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे आपने मेरे बाइनेंस अकाउंट में देखा था, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 5। दैट मींस इफ आई एम लूजिंग 1 आई एम गेनिंग 5। सो व्हाट इज द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन? अंधेरा हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, जल्दी वीडियो खत्म करूंगा। 1:1 रिस्क रेशियो मतलब इफ यू आर मेकिंग 100 रुपीज, आपका स्टॉप लॉस भी 100 रुपीज पे है। मतलब अगर आप जीतते हो तो 100 रुपीज जीतते हो, अगर आप हारते हो तो 100 रुपीज हारते हो। सो इन दिस यू नीड टू बी प्रॉफिटेबल मोर देन 50 टाइम्स, 50% ऑफ द टाइम, राइट? 50.1 भी होगा तो प्रॉफिटेबल रहोगे। 1:2 हो तो 33%। 100 में से सिर्फ 33 टाइम्स यू हैव टू बी करेक्ट अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेट के चलते हो तो। 1:3 मतलब 25%। 1:3 मतलब अगर इफ यू लूज यू आर लूजिंग 100, इफ यू विनिंग इफ यू आर मेकिंग 300। 1:5 जो मेरा है 17%। 100 ट्रेड्स में से आपको सिर्फ 17 बार सही होना है अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 है। सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू वर्क ऑन। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे अच्छा करे, कैसे अच्छे एंट्रीज ले, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करे कि आपका जो विन रेट है वो बढ़ता जाए एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बढ़ता जाए। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन, बिकॉज इफ वी कम बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, बैक टेस्टिंग द स्ट्रेटेजी विल टेल यू इफ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज गुड और नॉट। नेवर गो ऑल इन, उससे भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है एंड जर्नल मेंटेन करने से आपको ये सब चीजें पता चलती। सो मेक श्योर करना आप रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा अच्छा रख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर रिस्किंग 100 रुपीज बट यू आर मेकिंग ओनली 10। दैट वुड बी द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कुड एवर डू। नाउ लेट्स कम टू DeFi staking. So basically these are the platforms that I use. There are a couple of more which you could try out, but nothing here is a suggestion or an advice. DeFi Kingdoms, PancakeSwap, Anchor, Earn. If you come to DeFi Kingdoms, it's a game on Harmony blockchain game and a decentralized exchange. तो यहाँ पे मैंने LP बना हूँ। मैं LP मतलब बेसिकली मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है एंड I have made $28 in the last 3 days. So 28 divided by 3 करना, वहां से मेरा वो डेली इनकम है। यहाँ पे रिस्क है, डेफिनेटली है, क्यों नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड भी है। तो यहाँ पे उतना ही मैंने पैसा डाला है जितना मैं गवा सकता हूँ। I hope you are enjoying the content so far. Make sure you
liking this video and learn before you earn. The people who first earn and then come to learn are basically people who have gone bankrupt. मतलब जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जो भी इंसान पहले सोचता है कि मैं पैसे कमाऊं, वो जब बर्बाद हो जाता है ना वहां पे, जब उसका ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाता है, स्पॉट अकाउंट खाली हो जाता है, स्कैम में पैसे लगा देता है, किसी मीम कॉइन में पैसा लगा देता है, तब वो आता है चलो भाई हम सीखते हैं अच्छे से, विल लर्न. सो ऑलवेज मेक श्योर डोंट अर्न एंड देन लर्न, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न. फॉर यू आई presented a video here how to invest your first 10,000 rupees in crypto. This is a video that you must watch. So after this video, make sure you are watching that video as well. And that brings to the end of this video. Please do make sure you are subscribing to the channel. Shiba Inu Baba would be really happy and आपके portfolio को बहुत हरा कर देगा. That's pretty much it from my side. This is Vivan signing off. Let me know what is the next video that you would want me to make. If you want me to make a video on trading strategy, let me know in the comment sections. I would be happy to serve you guys.